Students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue with the story Ranga's Marriage, its fifth part. Now, the fifth part starts as follows. Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave, but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? Ratna ran inside, overcome by shyness. After a while, Ranga asked, "Who is that girl, Swami? Who's that inside?" The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who am I? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, it seems. Like the he-goat, I said, "What does it matter to either of us who she is? I am already married, and you aren't the marrying kind." Very hopefully, he asked, "She isn't married then?" His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago. अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। पिछले लेक्चर में आपने सुना था कि रत्ना नाम की एक महिला वो गाना गा रही थी, तभी रंगा आता है और जैसे ही रंगा आता है कमरे में, उसको देख करके वो अपना गाना रोक देती है। अब आगे क्या होता है? रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था। रंगा ने बार बार उसे देखा। बार बार दोनों की दृष्टि मिली और उसे शर्म आ गई। काफ़ी समय तक दोनों में कोई नहीं बोला। मेरे आने से गायन रुक गया, इसलिए मैं चलता हूँ, ये रंगा कहते हैं। शब्द मात्र शब्द। रंगा ने कहा तो कि वह जा रहा है, पर अपने स्थान से हिला नहीं। आज कलयुग में भला शब्दों का कर्म से क्या मेल? लेखक कहते हैं कि रंगा ने कह तो दिया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वह अपने स्थान से हिला नहीं। इसका अर्थ ये है कि आज के कलयुग में करने और कहने में काफ़ी अंतर रहता है। रत्ना अंदर भाग गई, वह शर्मा गई थी। कुछ समय पश्चात रंगा ने पूछा, "यह लड़की कौन है स्वामी? अंदर कौन है?" शेर ने जानना चाहा था। बकरे ने, जिसने मंदिर में शरण ले ली थी, बोला, "इससे क्या अंतर पड़ता है कि मैं कौन हूँ? एक बेचारा पशु हूँ जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका है। मैंने एक शेर और खाने की शपथ ले रखी है। यह तो बताओ कि तुम नर हो या मादा?" शेर भय के कारण भाग खड़ा हुआ
ऐसा दिखता है। बकरे की भांति मैंने कहा, यह जानने का हम दोनों को क्या लाभ है कि यह लड़की कौन है। मैं तो शादी कर ही चुका हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते। अब देखिए यहाँ पर जब रत्ना अंदर चली गई कमरे के, तो रंगा पूछते हैं कि वो कौन ये लड़की जो है वो कौन है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं रंगा को उस लड़की में कुछ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उसने प्रश्न किया। तो स्वामी ने उत्तर दिया कि ये जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है कि वो लड़की कौन है, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ ही, तो मुझे तो आवश्यकता नहीं है और तुम शादी करना नहीं चाहते हो, जैसा कि तुमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। बहुत आशा के साथ रंगा ने पूछा, तो उसका विवाह अभी नहीं हुआ है? उसकी आवाज़ में कोई उत्तेजना नहीं दिखी, पर मैं जानता था कि वो आवेग में था। रंगा ने उस लड़की के बारे में और जानना चाहा और जानने में वो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि उस लड़की का विवाह हुआ है या नहीं। उसका विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हो गया था। स्वामी ने उत्तर दिया कि उस लड़की का विवाह 1 साल पहले हो चुका था। His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have work at home. I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I shall come later. I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. Nothing is wrong, believe me. Headache? Come, let us go and see a doctor. I have no headache. I am my usual self. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. But I don't think that could be a reason for your present condition. Ranga stared at me. Come, let us go and see Shastri, I suggested. We will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time. अब हिंदी अनुवाद देखें। उसका चेहरा भुने हुए बैगन की भांति सिकुड़ गया। यानी जैसे ही बताया कि वो लड़की 1 वर्ष पूर्व शादी होकर चुकी है, तो जो खिला चेहरा था रंगा का वो मुरझा गया। कुछ देर बाद रंगा यह कहते हुए चल दिया, अब मुझे जाना होगा, घर पर कुछ काम है। मैं अगली प्रातः अपने शास्त्री के पास गया तथा उसे बताया, हर चीज़ नक्षत्रों के लिए तैयार रखो, मैं बाद में आऊँगा। मैंने उसे वह सब सिखा दिया जो मैं उससे कहलाना चाहता था। यानी शास्त्री के पास श्यामा चले गए और उसे बताया कि रंगा का विवाह इस लड़की से कराना है और जिस प्रकार की बातें उसके फेवर में हो वही बातें वो करे। मैं जब रंगा से उस शाम मिला तो मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। क्या बात है,
तुम तो जैसे विचारों में खो गए हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कुछ भी तो नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। सिर में पीड़ा है, आओ हम लोग किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं तो सामान्य हूँ। मैं भी इस दौर से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की का चयन करने का काम चल रहा था, पर मैं नहीं सोचता कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ऐसा ही कोई कारण है। रंगा ने मेरी ओर देखा। चलो हम शास्त्री के घर चलते हैं, मैंने सुझाव दिया। हम लोग पता लगा लेंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे लिए लाभकारी हैं अथवा नहीं। रंगा मेरे साथ बिना प्रतिवाद के चल दिया। जो ही शास्त्री ने हमें देखा वह बोले, कैसे आश्चर्य की बात है श्यामा, मैंने तुम्हें दीर्घ काल से नहीं देखा। Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. I got angry and shouted, What? Only this morning? Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. Shastri turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It is very rarely that he visits us. Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put our science of astrology to the test? There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries, and a book of palmyra leaves, saying, Ours is an ancient science, Ayya. There is a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Harikatha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I shall tell it to you some other time. श्यामा कोई अन्य व्यक्ति नहीं, इस कहानी का कथाकार आपका सेवक ही है, यानी जो ये कहानी लिख रहा है उसका नाम श्यामा है और वही चाहता है कि रंगा का विवाह हो जाए। मैं क्रोधित होकर गरजा, क्या बोले? आज ही प्रातः मिले थे। शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा किया। तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया, फिर मुझसे मिलने का तुम्हें समय मिल गया। यदि उसने ऐसा न कहा होता तो मेरी योजना उसी प्रकार नष्ट हो जाती जैसे अनाज के दाने धूप में सूखने हेतु रखने पर फूट जाते हैं। मैं इस बारे में बहुत सावधान था कि बाद में मुझे क्या कहना है। शास्त्री रंगा की ओर मुड़े। अपने लेखपाल का बेटा घर कब आया? मैं उसकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह तो हमारे पास शायद ही कभी आता है। अपना तामझाम निकालो, हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसकी चिंता क्या है? क्या हम आपकी ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले लें? मेरे आवाज़ में रोष था। जब मैं शास्त्री से बोला, उसने कागज़ के 2 पन्ने लिए, कुछ कौड़ियाँ लीं तथा ताम्रपत्र पर लिखी पुस्तक निकाली। हमारा यह विज्ञान तो बहुत पुराना है, इससे जुड़ी एक कहानी है, पर मैं वह कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा। यह कोई हरि कथा नहीं जो आपको कहानी के अंदर की कहानी सुनाने की छूट देती है। आप शायद ऊब जाएंगे। यह कहानी तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।